लास्ट क्लास से हम लोग पढ़ रहे हैं इंसर्जेंसी एंड एक्सट्रीमिज्म, राइट. टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द प्रॉब्लम ऑफ नॉर्थ ईस्ट, राइट. टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द प्रॉब्लम ऑफ नॉर्थ ईस्ट, राइट. कल जो हमने पढ़ा था उसके बारे में थोड़ा बताइए आप. गवर्नमेंट ने कौन कौन सी पॉलिसीज वगैरह चलाई हैं नक्सल अफेक्टेड एरिया में, राइट. एंड देन सिक्योरिटी रिलेटेड एक्सपेंडिचर स्कीम्स है और रोशनी है. देन हाँ, राइट. प्लीज कम, आइए. नेक्स्ट okay. Today we will discuss about the problem of northeastern problem, and why in northeast constantly we see ethnic conflict, political clashes, border issue, right. So what are the major problem of northeast? What are the major problem of northeastern states, right. When we say northeastern state, it's mean Assam, Meghalaya, Mizoram, Tripura, Arunachal, Nagaland, right. This is the 7 sister state, right. नॉर्थ ईस्ट की समस्या कोई नई समस्या नहीं है. इट्स इनफैक्ट इट वाज बिफोर इंडिपेंडेंस एंड पोस्ट इंडिपेंडेंट वी सी द नॉर्थ ईस्ट इज फेसिंग द नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स, राइट. नॉर्थ ईस्ट में एथनिक प्रॉब्लम है, राइट. पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी का भी इशू है, इंसर्जेंसी के मामले हैं, एंड स्लो पेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, ओके, infrastructural problem and some kind of alienation from the rest of the India. नॉर्थ ईस्ट की जो टोपोग्राफी है वो भी बहुत हद तक क्रिटिकल है. टोपोग्राफी मीन you will see some area are flooded, right. Assam, lower Assam, you see the flood is constantly coming, and then some area is hilly area because it is a part of Garo, Khasi, Jaintia hills and Meghalaya hills, right hai. So what I would like to say that northeast is an area that is conflict zone area in India. From the defense point of view, it is considered as a chicken neck, right. There is a Siliguri corridor, only some you can say 40-50 kilometer area that connected with India. The situation become more critical when Bangladesh was formed. After the partition of Pakistan, East Pakistan and West Pakistan, what we see in 1971, Bangladesh had been created. An influx of people from Bangladesh to northeastern state, Assam, Tripura, it created a critical situation. The issue of outsider become prominent, and this outsider issue had generated some local, regional insurgent groups like Ulfa, NDLF, Bodo, right. You will also see in Tripura Tigers, Mizo councils, Mizo groups there is. In Nagaland the problem is there. You will also see one of the backward district, in fact the most of the backward district of India are also located in northeastern states. Whether it is a Karbi Anglong, whether it is a Sukma district, right. What we see in the northeastern problem is that first of all some kind of alienation, some kinds of separation from India, right. Alienation from India, some kinds of isolation, right. You will see in Assam Barak Valley, upper Brahmaputra or lower Brahmaputra, right.
कुछ एरिया का कनेक्शन भारत के साथ है, बट सम एरिया इज सराउंडेड बाय डिफरेंट अदर स्टेट्स, इवन इट्स अ बॉर्डर एरिया। बांग्लादेश के साथ बॉर्डर है, भूटान के साथ बॉर्डर है, राइट। म्यांमार से इंसर्जेंसी ग्रुप जो है सराउंड कर रहे हैं। सो एलिनेशन फ्रॉम इंडिया, राइट। असम का कुछ पार्ट, बराक वैली, Nagaland also you see, when we talk about the isolation and separation, it is not only geographical isolation. Culture, food, dress, social habit, all the thing is different from India. You will see food habit. This is also different from India. Cultural festival you will see different from India, right? So some kind of alienation, northeastern people, even race-wise, you will see the different from us. So some kind of alienation also you see in the entire northeastern state, right? Then another important problem of northeast is a slow economical growth, a slow pace of industrial growth. Slow pace of इंडस्ट्रियल ग्रोथ। नॉर्थ ईस्ट स्टेट का जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है एज कंपेयर टू रेस्ट ऑफ द इंडिया काफी लो है, राइट। एक आप गुवाहाटी या असम का कुछ एरिया में आप इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट देखते हैं, अदरवाइज ड्यू टू टोपोग्राफी, ड्यू टू ट्रेन, ड्यू टू क्लाइमेटिक कंडीशन, यू वॉन्ट सी मेजर इंडस्ट्रियल रीजन, राइट। कोई बहुत बड़ा इंडस्ट्री वहां नहीं है, जो ग्रोथ है वो भी काफी स्लो है। मान लीजिए वुडन इंडस्ट्री है, टिम्बर से रिलेटेड इंडस्ट्री हो सकता है, बट वो भी जो है काफी स्लो पेस है, राइट। ड्यू टू इंडस्ट्रियल sluggishness and flood condition, agriculture based industry also not growing. वहाँ एग्रीकल्चर के भी जो हालात हैं वो बहुत अच्छे नहीं हैं। अगर आप असम का कुछ एरिया देखिए तो ब्रह्मपुत्रा वैली में होने की वजह से काफ़ी एरिया फ्लडेड होता है। इवन तीस्ता नदी भी है वहाँ पर, राइट। तो तीस्ता का भी पानी आता है, ब्रह्मपुत्रा का भी पानी आ रहे हैं, राइट। सो असम का जो एरिया है, इवन इंटायर नॉर्थ ईस्ट बहुत हद तक फ्लडेड है। त्रिपुरा में भी ऐसी चीज़ें हैं। तो एग्रीकल्चर का भी बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेक्टस है नहीं, राइट। एंड देन यू सी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री की भी बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं है। थोड़ा बहुत बैम्बो से रिलेटेड कुछ एग्रीकल्चरल एक्टिविटी और इंडस्ट्रियल एक्टिविटी है, राइट। तो एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री दोनों में नॉर्थ ईस्ट का लैकिंग बिहाइंड है, जिस वजह से हम कह सकते हैं कि नॉर्थ ईस्ट का जो है डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा नहीं हो पा रहा है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रीजन दैट्स व्हाई नॉर्थ ईस्ट इज नॉट ग्रोइंग very fastly as compared to rest of the India. You see insurgency issue and political instability and political problem. The issue of political problem and insurgency. Today we are discussing about the problem of North East, right? North East की समस्या को हम लोग देखते हैं कि वहाँ क्यों इंसर्जेंसी, टेररिज्म या एक्सट्रीमिज्म, एथनिक कॉन्फ्लिक्ट ग्रो कर रहा है, राइट। नॉर्थ ईस्ट में क्या क्या समस्याएं हैं हम लोग उसी को डिस्कस कर रहे हैं। पॉलिटिकल प्रॉब्लम एंड इनस्टेबिलिटी। पॉलिटिकल प्रॉब्लम में आप क्या देखोगे, बॉर्डर इश्यूज होते हैं, जैसे असम का मिजोरम के साथ, असम का मेघालय के साथ, राइट। बॉर्डर का जो डिमार्केशन है वो भी बहुत हद तक डिस्प्यूटेड है। बॉर्डर इशू है, बॉर्डर इश्यूज हैं, right? So interstate conflict is increasing. In Northeast, you see the interstate conflict is increasing. In the recent time, Assam and Meghalaya problem, right? Assam and Mizoram problem, Assam and Tripura problem, इवन असम का वेस्ट बंगाल के साथ भी टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स हैं, राइट। सो दिस इज द रीजन एंड पॉलिटिकली यू विल सी देयर वाज अ लैक ऑफ स्टेबल गवर्नमेंट। बहुत सारे मौकों पे हमने ये देखा कि नॉर्थ ईस्ट में
अभी 5-10 सालों से थोड़ा ट्रेंड चेंज हुआ है, एक स्टेबल गवर्नमेंट बनते हैं। अदरवाइज वहाँ की जो गवर्नमेंट है आया राम गया राम, सरकारें स्टेबलाइज नहीं है, राइट। बहुत सारे राज्यों में तो स्टेट टर्मोइल होने की वजह से इमरजेंसी भी है, स्टेट इमरजेंसी, इवन डिप्लॉयमेंट ऑफ आर्म फोर्स, डिप्लॉयमेंट ऑफ आर्मी एंड आस्पा, आर्म फोर्स का डिप्लॉयमेंट है, और साथ में आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट भी लगे हुए हैं। नॉर्थ ईस्ट एक ऐसा स्टेट है जहां पहले से ही आस्पा जो है इंपोज किया गया, इवन 1957 से, राइट। इंसर्जेंसी की जो घटनाएं हैं वो डे बाय डे अभी लास्ट 5 to 10 ईयर में कुछ एकॉर्ड्स हुए हैं जिस वजह से थोड़ी बहुत पीस दिख रहा है, बट 90s में, 95 में, 2000 तक, इवन 2005-7 तक उस समय काफी ज्यादा वायलेंट एक्टिविटी हो रहे थे। उल्फा, बोडो, एनडीएलएफ ऐसे जो ग्रुप्स थे वो रैंसम मनी मांगते थे, लोगों का किडनैप करना, स्कूल पे अटैक करना, इंडस्ट्रियलिस्ट को मारना, राइट। जो ऑयल की कंपनीज के वर्कर थे उनको किडनैप कर लेना, राइट है। तो ऐसी चीजें नॉर्थ ईस्ट में एक कॉमन फेनोमेना बन गया था। नॉर्थ ईस्ट में ये घटनाएं फ्रीक्वेंटली हो रही थी। साथ में नॉर्थ ईस्ट में एक और प्रॉब्लम दिख रहा है, आपका जो आउटसाइडर है, जो बांग्लादेशी वहां गए, राइट, कुछ बांग्लादेशी वहां इलीगली घुसपैठिए की तरह वहां रह रहे हैं, राइट, और रेस्ट ऑफ द इंडिया के लोग भी जो इंप्लॉयमेंट के पर्पज से गए, इनके साथ भी प्रॉब्लम हो रहा है। असम का एक डिस्ट्रिक्ट है तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट, राइट, वहां क्लैशेज वगैरह सुनने आया बिहारी और आसामीज लोगों के बीच में। इसी तरह जो वहां के लोकल ट्राइब्स हैं उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट दिखता है। पिछले ही साल हमने क्या देखा मणिपुर में मणिपुर में नागा, कुकी, मैती, ये कम्युनिटी आपस में लड़ाई कर रहे हैं, राइट है। सो कम्युनिटी क्लासेस या एथनिक क्लासेस का भी एक एग्जांपल नॉर्थ ईस्ट में है, जिसकी वजह से वहां का जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, पॉलिटिकल सेटअप है, वो बहुत अच्छे से इस्टेब्लिश नहीं हो पा रहा है। सो इंसर्जेंसी, इंटरस्टेट कॉन्फ्लिक्ट एंड ethnic conflicts, right? What we see in ethnic conflict? बोडो एंड मुस्लिम्स में लड़ाई, बोडो एंड मुस्लिम्स में लड़ाई, नागा, कुकीज, मैती कॉन्फ्लिक्ट्स, राइट। कुछ आउटसाइडर इन्फ्लुएंस जैसे चाकमा का प्रॉब्लम, रिसेंट टाइम में म्यांमार से रोहिंग्या ऑल्सो सेटल देयर, राइट। देन इश्यू ऑफ हिंदी स्पीकिंग पीपल, नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में हिंदी भाषा भाषी लोगों के ऊपर भी आए दिन हमले, अटैक, फिजिकल असॉल्ट वगैरह की घटनाएं हुई हैं। असम में ही गुवाहाटी रीजन में इवन कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं असम के, जैसे उदालगुरी, जैसे कोकराझार डिस्ट्रिक्ट, राइट, जैसे आपका एक एरिया है असम का बराक वैली में, आप देखोगे डिब्रूगढ़ करके, वहां भी इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। कभी कभी जो हिंदी भाषा भाषी क्षेत्र के लोग जो एम्प्लॉयमेंट के पर्पज से वहां जा रहे हैं, चाहे वो लेबरर है, चाहे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है, उनके साथ किडनैपिंग, फिजिकल असॉल्ट, ऐसी घटनाएं सुनने में आया। और असम में या इवन नॉर्थ ईस्ट में जो है कम्युनल भी कलर ले रहे हैं, कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट भी हो रहे हैं, हिंदू मुस्लिम कॉन्फ्लिक्ट। अभी कुछ समय पहले ही बोडो में मुस्लिम में लड़ाई हो गई, राइट। सो आप कह सकते हो कि नॉर्थ ईस्ट एक तरह से कॉन्फ्लिक्ट प्रोन एरिया है, राइट। नॉर्थ ईस्ट इज अ कॉन्फ्लिक्ट प्रोन एरिया, इंसर्जेंसी, एथनिक कॉन्फ्लिक्ट, कल्चरल डाइवर्सिटी, राइट, देयर आर द डाइवर्स कल्चरल डाइवर्सिटीज है, स्लो पेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, फ्लड अफेक्टेड एरियाज, ज्योग्राफिकल जो ट्रेंड है वहां का अच्छा नहीं है, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटीज देयर, राइट। सो ये सारी समस्याएं नॉर्थ ईस्ट की समस्या है, जिस वजह से नॉर्थ ईस्ट का इकोनॉमिक और इंडस्ट्रियल ग्रोथ काफी कम है, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट व्हाट वी सी इन नॉर्थ ईस्ट,
poverty, unemployment, right? Poverty and unemployment. Poverty and unemployment, right? In northeastern state, we see the poverty as well as unemployment, right है? पॉवर्टी काफ़ी ज़्यादा है नॉर्थ ईस्ट में, कुछ राज्यों की तो हालात बहुत ख़राब है, और साथ ही साथ हम क्या देखते हैं कि आपका वहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट की भी समस्याएं हैं, राइट? अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या बहुत ज़्यादा एज कंपेयर टू रेस्ट ऑफ द इंडिया अगर हम देखें तो अनएम्प्लॉयमेंट के डेटा में नॉर्थ ईस्ट का स्टेट काफ़ी बैकवर्ड है। जैसे अगर आप नागालैंड को देखो, मिजोरम को देखो, मणिपुर को आप देखिए, त्रिपुरा देखिए, तो दिस इज फार बिहाइंड। इवन पॉवर्टी का अगर लिटरेसी देखा, पॉवर्टी का अगर पैरामीटर देखा जाए, वहाँ भी आप अप टू मार्क नहीं है। सो पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, ये सारी चीज़ें आपका है। नॉर्थ ईस्ट के साथ एक और समस्या है कि जो म्यांमार का इंस्टेबिलिटी है, म्यांमार में जो पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस होता है, इवन मिलिट्री का आना, डेमोक्रेसी का फेल होना, ये समस्या भी नॉर्थ ईस्ट को अफेक्ट करता है, राइट? आपने सुना होगा या इवन पढ़ा होगा कि भारत सरकार लुकिस्ट पॉलिसी चलाती है। क्यों लुकिस्ट पॉलिसी चलाती है? कि नॉर्थ ईस्ट का डेवलपमेंट हो जाए। हालांकि लुकिस्ट पॉलिसी के और भी बड़े सारे बेनिफिट हैं, तो नॉर्थ ईस्ट भी जो है एक टारगेट है। सो म्यांमार का जो पॉलिटिकली इनस्टेबल होना, राइट? बांग्लादेश में जो इनस्टेबिलिटी है, वहाँ जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं रिलीजन के नाम पे, या बांग्लादेश का एमर्ज होना, ये भी एक तरह से नॉर्थ ईस्ट को अफेक्ट करता है। अपार्ट फ्रॉम दैट यू विल सी द रोल ऑफ चाइना, ओके, द इशू ऑफ चाइना, चाइनीज एंगल ऑल्सो। चाइना एंड म्यांमार का रोल नॉर्थ ईस्ट के डेवलपमेंट में काफी है, वहां के बैकवर्डनेस में काफी है। इनफैक्ट वहां डेवलपमेंट बहुत हद तक नहीं हो पाया, राइट है? नॉर्थ ईस्ट में या यहां पर जो है डेवलपमेंट नहीं हो पाया। चाइना और म्यांमार को आप कैसे कह सकते हो कि देखो, चाइना जो है वहां कुछ रिपोर्ट्स के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू सम रिपोर्ट, चाइना इज सप्लाइंग टू आर्म्स, logistic support, and in Bangladesh there are the many training camp of this separatist group is also operating, right? There is involvement of China. Apart from that, ISI, म्यांमार के रास्ते हम लोग क्या देखते हैं, रास्ता जो म्यांमार का है, जो रूट है, उस रास्ते से भी इंसर्जेंट ग्रुप आते हैं, राइट? सो असम में या चाहे पूरे नॉर्थ ईस्ट में अगर म्यांमार डिस्टर्ब है, चाइना डिस्टर्ब है, तो उसका इंपैक्ट है, राइट? एंड ये इन कंट्री का कहीं ना कहीं जो है एक तरह से आप कह सकते हो कि इन्वॉल्वमेंट होता है, राइट? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नॉर्थ ईस्ट के डेवलपमेंट्स के लिए बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं। जैसे मैंने कहा 1971 में ही नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल का विकास किया गया, राइट है? जब ये प्रॉब्लम्स हम देखते हैं तो भारत सरकार के कुछ स्टेप्स भी हमें एनालाइज करना पड़ेगा कि व्हाट आर द मेजर स्टेप्स या व्हाट आर द प्राइम स्टेप that was taken by the government of India for the development of entire North East, right? North East के developments को लेके भारत सरकार के क्या प्लान एंड पॉलिसी है, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। प्रॉब्लम ऑफ नॉर्थ ईस्ट, व्हाई इन नॉर्थ ईस्ट देयर आर द प्रॉब्लम इज ग्रोइंग, व्हाई एथनिक प्रॉब्लम इज डेवलपिंग, राइट? आर यू अंडरस्टैंडिंग? कैन आई आस्क एनी क्वेश्चन फ्रॉम यू? राइट। नॉर्थ ईस्ट के प्रॉब्लम को जो हम डिस्कस करते हैं तो इसमें हमें कुछ जो सेपरेटिस्ट ग्रुप या इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं उसके बारे में भी हमें जानना जरूरी होता है कि इन लोगों का क्या रोल है, ये लोग किस तरह से पूरे नॉर्थ ईस्ट को डिस्टर्ब करके रखे हैं। जैसे उल्फा, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम, राइट है? NDLF, पहले लिखो बोडो, इशू ऑफ बोडो, बोडोलैंड,
आसू, ऑल असम स्टूडेंट यूनियन, आसू, असम, ऑल असम स्टूडेंट यूनियन, AASU, NDLF, नेशनल डेमोक्रेटिक लिबरेशन फ्रंट, NDLF, NDLF, बोडो से रिलेटेड है, BTC, हाँ जी, लिबरेशन फ्रंट, ठीक है। बोडो टेरिटोरियल काउंसिल, BTC, बोडो टेरिटोरियल काउंसिल, BTC, बोडो टेरिटोरियल काउंसिल, कार्बी आंगलोंग, राइट है, कार्बी, कार्बी इज अ ट्राइब एंड कार्बी जो एरिया है, कार्बी हिल काउंसिल, ये वहां के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है। तो कार्बी का इशू भी आप देख सकते हो, कार्बी आंगलोंग, बोडो टेरिटोरियल काउंसिल्स, NDLF, देन त्रिपुरा लिबरेशन फोर्स, त्रिपुरा लिबरेशन फोर्स, त्रिपुरा लिबरेशन फोर्स, मिजो, मिजो फ्रंट बनाया, मिजोरम में कुछ ग्रुप्स हैं, दे हैव आल्सो फॉर्म, नागा, नागाज ग्रुप्स है, देयर आर द सम, नागालैंड में कुछ नागा ग्रुप इज आल्सो ऑपरेटिंग, नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड, NSCN, one group very prominent, NSCN, National Socialist Council of Nagaland, National Socialist Council of Nagaland, इसमें डिवीजन हो गया I और M, आइजक एंड मुइबा, ये लोग जो हैं आपका इसके लीडर थे। जिस तरह आप बोडो में देखते हैं बहुत सारे लीडर, या उल्फा में परेश बरुआ, ऐसे जो लोग थे वो लोग इसमें इन्वॉल्व थे, राइट है। आपने देखा होगा किस तरह से बांग्लादेश ने हैंग किया, बांग्लादेशी कोर्ट ने उसको हैंग कर दिया। ऐसे बड़े सारे लीडर्स, बड़े सारे ग्रुप्स जो हैं वहां ऑपरेट हो रहे हैं, राइट है। ये जो ग्रुप्स हैं ये आपस में भी लड़ते हैं, ऐसा नहीं है कि ये ग्रुप सिर्फ जो है असम के बारे में बात करते हैं, असम के लोगों के बारे में बात करते हैं। दे आर ऑल्सो फाइटिंग विद इन देमसेल्फ, दे आर फाइटिंग विद इन इटसेल्फ। आप कह सकते हो कि इनका जो फाइट है वो आपस में भी चलता रहता है कुछ एथनिक इश्यूज को लेकर के, राइट। जब हम उल्फा की बात करते हैं या बोडो की बात करते हैं, दे आर टॉकिंग अबाउट द ग्रेटर असम, ग्रेटर बॉर्डर लाइन, राइट है, ऑटोनॉमी इश्यू ऑफ आउटसाइडर। इसमें आंसू का अगर आप एग्जांपल देखें तो वो सिर्फ बांग्लादेशी को लेके, आउटसाइडर के इश्यू को लेके करते हैं। आप देखेंगे 1985 में एक असम अकॉर्ड हुआ था, राइट। असम अकॉर्ड में जो 1966 से 71 में आए हैं, इनको वोटिंग राइट नहीं है 10 इयर्स के लिए, राइट है। 71 के बाद जो आए दे आर इंट्रूडर, घुसपैठिया हैं, और 1966 के पहले जो आए दे आर द सिटीजन ऑफ इंडिया एंड दे आर लोकल ऑफ दैट स्टेट, राइट है। सो उनके पास वोटिंग राइट्स या कुछ राइट्स दिए गए हैं। ये जो कॉम्प्लेक्सिटी है डिफरेंट एथनिक ग्रुप का, डिफरेंट टाइप के डिमांड्स हैं, इसमें पॉलिटिकल एंगल है, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज को सपोर्ट भी करती है, राइट। जैसे असम गण परिषद नाम का एक पार्टी है जो रीजनल इश्यू को बढ़ा चढ़ा के लोकसभा के इलेक्शन में, चाहे विधानसभा के इलेक्शन में प्रेजेंट करते हैं, राइट। सो एक इलेक्टोरल एजेंडा है। असम में जो आउटसाइडर के इश्यूज हैं, नॉर्थ ईस्ट में जो आउटसाइडर के इश्यूज हैं, ये एक इलेक्टोरल एजेंडा बन के रह गया। सभी पार्टियां, बहुत सारी पार्टियां या कुछ पार्टियां उसको बहुत ज्यादा लोगों के सामने प्रेजेंट करने का काम करते हैं, राइट। हालांकि अभी तक नॉर्थ ईस्ट में आउटसाइडर का मुद्दा सॉल्व नहीं हुआ है, राइट। 2015 में भी ऑनरेबल जो हमारे होम मिनिस्टर थे हैं, सॉरी, जो अभी भी होम मिनिस्टर जी हैं, अमित शाह जी, श्री अमित शाह जी, इन्होंने कुछ एग्रीमेंट भी किया। उसके पहले भी बहुत सारे एग्रीमेंट हो चुके हैं। कुछ उल्फा के जो बंदे थे उन्होंने सरेंडर भी किया, मेन स्ट्रीम में भी जुड़े हैं। इसी तरह बोडोलैंड से या और जो सेपरेटिस्ट ग्रुप के लोग थे वो आपस में मिल के काम करने का भी प्रयास कर रहे हैं। इन शॉर्ट व्हाट आई वुड लाइक टू से दैट
the government of India has taken the number of steps, by which step they are trying to stabilize the northeast and they are trying to control the situation of northeast, right? Even there are the multiple type of package toward the northeast, like infrastructural development, like नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल का गठन किया जाना, उसकी रेगुलर मीटिंग होना, देन इंप्रूवमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड रेल लिंक, आप देखेंगे रोड रेल लिंक का कनेक्टिविटी है, ओके, देन पैकेज, स्पेशल पैकेज हैज गिवन फॉर नॉर्थ ईस्टर्न डेवलपमेंट, राइट, नागालैंड फेस्टिवल सेलिब्रेट करना, कल्चरली जो प्रोग्राम है उसको इनकरेज करना, यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में कुछ सीटें उनके लिए प्रेफरेंस रखना, स्कॉलरशिप प्रोग्राम देना, ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम एंड पॉलिसी जो है प्रेजेंट गवर्नमेंट या इसके पहले की भी गवर्नमेंट चला रहे थे, राइट है। सो भारत सरकार का भी स्टैंड है कि नॉर्थ ईस्ट का जो प्रॉब्लम है उसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया जाए, ठीक है ना। नॉर्थ ईस्ट में जो पहले भी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि नॉर्थ ईस्ट में बेसिक फैसिलिटीज, जो बेसिक एमिनिटीज है वो थोड़े कम है एज कंपेयर टू रेस्ट ऑफ द इंडिया, एंड करप्शन का बहुत बड़ा मुद्दा है। नॉर्थ ईस्ट में जो एडमिनिस्ट्रेटिव करप्शन है ये भी बहुत ज्यादा है, ये भी एक समस्या है जिस वजह से नॉर्थ ईस्ट का जो विकास है उतनी तेजी से नहीं हो रहा। हालांकि लास्ट 5 to 10 ईयर में काफी स्पीडली नॉर्थ ईस्ट विकास कर रहा है, राइट है। एडमिनिस्ट्रेटिव करप्शन, ये भी आप लिख सकते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव करप्शन एंड लैक ऑफ बेसिक एमिनिटीज, लैक ऑफ बेसिक फैसिलिटीज आर द कॉमन प्रॉब्लम्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट। Basic facilities, lack of common facilities. देखिए, the government, the central government has taken the number of steps. Second paragraph में आप लिखिए, the central government has taken the number of steps. Central government has taken the number of steps for the development and solution of northeastern problem. Solution of northeastern problem. The major step that is northeastern problem, the solution of northeastern problem. The first major steps that was taken, the different centrally and state sponsored program, centrally and state sponsored program for the development of northeastern state, for the different centrally and state sponsored program for the development of northeastern people, northeastern people के developments के लिए special program, right? Then a special package for infrastructural development, a special package for infrastructural development, रोड कनेक्टिविटी को बढ़ाना, रेल लिंक को बढ़ाना, रोड एंड रेल दोनों कनेक्टिविटी को बढ़ाना, राइट है। आप जानते ही हैं कि नेशनल वाटर का जो नंबर 1 चैनल है, फर्स्ट चैनल गंगा टू ब्रह्मपुत्र है, तो वाटर चैनल को भी स्ट्रॉन्ग करना, साथ में रेल की जो कनेक्टिविटी है उनको बढ़ाना, कुछ रेल लिंक इस्टेब्लिश करना, कहीं कहीं पर डबल ट्रैकिंग करना और रोडवेज की कनेक्टिविटी को बढ़ाना, ये भी है। देन नॉर्थ ईस्टर्न फेस्टिवल, सम नॉर्थ ईस्टर्न फेस्टिवल एंड कल्चरल प्रोग्राम ऑल्सो इनिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। फेस्टिवल कल्चरल प्रोग्राम, जैसे नागालैंड में एक हॉर्नबिल फेस्टिवल होता है, हॉर्नबिल, नागा में हॉर्नबिल फेस्टिवल होते हैं, ऐसे प्रोग्राम्स वगैरह चलाना। कल्चरल प्रोग्राम, कल्चर प्रोग्राम related to northeastern state. Then negotiation and dialogue process with the separatist group or insurgent group. Negotiation and dialogue process, negotiation and dialogue process, negotiation and dialogue process with the insurgent groups.
जो वहां पर ऑपरेट होने वाले इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं, उस इंसर्जेंट ग्रुप्स के साथ नेगोशिएशन करना और डायलॉग वगैरह करना। जैसे ऑनरेबल होम मिनिस्टर जी ने 2015 में एग्रीमेंट किया, 2018 में, और जो लोग जो उल्फा से, चाहे बोडो से, एनडीएलएफ से, या किसी भी सेपरेटिस्ट ग्रुप के जो पर्सनल्स हैं, वो अगर हथियार छोड़ करके मेन स्ट्रीम में आना चाहते हैं तो सरकार उनको रिहैबिलिटेशन भी देती है, राइट है। कहीं कहीं पे जॉब का भी अपॉर्चुनिटी है, हाउसिंग अपॉर्चुनिटीज हैं, एंड रिहैबिलिटेशन पैकेज भी दे रही हैं। ये सरकार की एक अपील है कि जो मेन स्ट्रीम में आना चाहते हैं, सेपरेटिज्म को छोड़ करके, हथियार को छोड़ के, उन लोगों के साथ सरकार जो है एक सॉफ्ट कॉर्नर रखेगी। उनके डेवलपमेंट्स के लिए, उनके एजुकेशन के लिए, उनके बेनिफिट्स के लिए सरकार पॉलिसी चला रही है, राइट। तो रोड कनेक्टिविटी पे मैंने कहा, नेगोशिएशन टॉक कहा, इंफ्रास्ट्रक्चर डायलॉग प्रोसेस भी कहा, राइट है। देन इन रिसेंट ईयर सम इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट हैज आल्सो सेट अप इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। आप देखेंगे गुवाहाटी में, शिलोंग में, some industrial project has also set up bamboo से related या एग्रो बेस रिलेटेड इंडस्ट्री, राइट। जो क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में फॉरेस्ट काफी अच्छा है, टिम्बर रिलेटेड इंडस्ट्री है, फॉरेस्ट रिलेटेड इंडस्ट्रीज हैं, राइट है। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री वगैरह सेट किया गया है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम्स एंड पॉलिसी, and next the decentralization, food processing industry, decentralization and protection of right of tribal people। सरकार जो है डिसेंट्रलाइजेशन, गवर्नमेंट क्या कर रही है, डिसेंट्रलाइजेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ ट्राइबल्स पीपल राइट्स, राइट है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 371A B ऐसे करके आप देखोगे, BC करके जो 371 है, उसमें नागालैंड या किसी दूसरे राज्यों के कल्चर, रिलीजियस, इनको प्रोटेक्शन करने का प्रोविजन है। इवन आर्टिकल 244 भी हम देख सकते हैं। एंड 6th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट, 6th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्पेशली deal to the Assam, Meghalaya, Tripura, Mizoram, right? Their cultural right, their local जो administrative rights हैं, their ethnic rights को protect किया गया। And then 5th schedule also applied in some states, right? 5th schedule आपने ये भी पढ़ा होगा, जैसे टेरिटोरियल काउंसिल बन रहा है, बोडो टेरिटोरियल काउंसिल, तो वहां किसी तरह का अगर काम होगा या डेवलपमेंट के वर्क होंगे तो ग्राम सभा के पास ज्यादा पावर है। वहां के ट्राइबल्स को उसमें रिप्रेजेंटेशन दिया गया है और ट्राइबल के इंटरेस्ट को ध्यान में रखकर ही कोई काम किया जाएगा, राइट। सो पार्टिसिपेशन के ऊपर ज्यादा स्ट्रेस दिया जा रहा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थ्रू लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव चैनल के थ्रू पार्टिसिपेशन के ऊपर, पीपुल्स का इन्वॉल्वमेंट, राइट, पीपुल को इन्वॉल्व करके डेवलपमेंट का काम करना है, प्रोग्रेस का काम करना है, राइट। नॉर्थ ईस्ट से रिलेटेड एक सेपरेट मिनिस्ट्री सेटअप कर दिया गया, आपने सुना ही होगा, ऑनरेबल श्री जितेंद्र सिंह जी उसमें हेड हैं, तो नॉर्थ ईस्ट से रिलेटेड एक अलग सेटअप ही कर दिया गया, ओके। अभी रिसेंट ईयर में हम क्या देखते हैं कि नॉर्थ ईस्ट के जो है कुछ लोगों को, आई मीन वहां के रिप्रेजेंटेटिव को मिनिस्ट्री में भी जगह दी गई, राइट है। देन नॉर्थ ईस्ट में स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स डेवलपमेंट हो रहा है, ओके। नॉर्थ ईस्ट में जैसे काजीरंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वहां डेवलपमेंट्स के प्रोजेक्ट किए जा रहे हैं, ओके। नॉर्थ बंगाल में भी डेवलपमेंट किया जा रहा है। तो ये सारी चीजें नॉर्थ ईस्ट के विकास से रिलेटेड है। नॉर्थ ईस्ट के स्टूडेंट भारत के किसी भी पार्ट में अगर पढ़ने जा रहे हैं तो उनका एक स्पेशल केयर और फैसिलिटीज दी जा रही है, स्कॉलरशिप प्रोग्राम, राइट। तो नॉर्थ ईस्ट को मेन स्ट्रीम से जोड़ने का काम किया जा रहा है। रिसेंट टाइम में आपने देखा कि अरुणाचल प्रदेश और आसाम में जो है एक धोला सादिया नाम का ब्रिज बना, राइट है, ब्रिज कनेक्टिविटी जो अरुणाचल को आसाम के साथ जोड़ते हैं, राइट है। फिर ब्रह्मपुत्रा पे डैम बनाने का प्रपोजल चल रहा है, ओके। नॉर्थ ईस्ट के बहुत सारे वाटर चैनल को जोड़ा जा रहा है, हाइडल पावर प्रोजेक्ट वहां डेवलप किए जा रहे हैं। तो ये जो पावर प्रोजेक्ट है, रोड कनेक्टिविटी है, डैम है, इवेंट पूल है, तो वहां के लोगों के लिए ही है सब कुछ, जिससे वहां के लोग जो है विकास की मेन धारा में आ सके, राइट है।
चाहे अरुणाचल हो, चाहे नागालैंड हो, चाहे मिजोरम हो, राइट। ये सारी चीजें वहां की जा रही है। नेगोशिएशन टॉक तो पहले ही चल रहा था। कल्चरल राइट कॉन्स्टिट्यूशनल भी प्रोटेक्टेड है, एडमिनिस्ट्रेटिव वाइज भी प्रोटेक्टेड है। गेटिंग माय पॉइंट, राइट है। तो नॉर्थ ईस्ट के लिए सरकार जो है स्पेशल पैकेज दे रही है। कॉन्स्टिट्यूशन में मैं पहले भी कह चुका हूं कि एक नॉर्थ ईस्ट काउंसिल है। क्या है? नॉर्थ ईस्ट काउंसिल। 1971 में नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल। ये नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल क्या है? डेवलपमेंट, नॉर्थ ईस्ट का विकास हो, नॉर्थ ईस्ट की जो समस्या है उसका निवारण किया जाए, मैक्सिमम डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट हो, इसके लिए नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल बनाया गया। और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर इसको चेयर करते हैं, साथ में नॉर्थ ईस्ट के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो भी वहां पार्टिसिपेट करते हैं, राइट। सो ओवरऑल नॉर्थ ईस्ट का जो मल्टी डायमेंशनल डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर, इकोनॉमी, रिसोर्स, बॉर्डर इशू, इन सब चीज से रिलेटेड ये जो है प्रोग्राम या ये जो है आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज बनाई गई है और इसका रेगुलर मीटिंग भी हो रहा है। You will also see apart from that the some business summit is also going on in north eastern state। कुछ बिजनेस समिट भी जो है आपका नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में हो रहे हैं, बिजनेस समिट, राइट। एंड देन एग्जीबिशन एंड सेमिनार इज ऑल्सो गोइंग ऑन। सम एग्जीबिशन, सेमिनार, बिजनेस समिट, इवन फिल्म फेयर का जो अवार्ड था, फिल्म से रिलेटेड 2-3 साल पहले एक ऑर्गेनाइजेशन, एक फंक्शन जो है गुवाहाटी में किया गया, खेलो इंडिया प्रोग्राम वहां किया गया, राइट है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें की जा रही हैं जिससे नॉर्थ ईस्ट को मेन स्ट्रीम के साथ कनेक्ट किया जाए, राइट। नॉर्थ ईस्ट को कनेक्ट करने के लिए ये सारे प्रयास भारत सरकार कर रही है। ओके, देखिए लुक ईस्ट पॉलिसी, लुक ईस्ट पॉलिसी 1992 में ये प्रोग्राम चलाया गया। पूरब की ओर देखो, यानी ईस्टर्न जो कंट्रीज हैं इंडिया में, उसके उस देश के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाना, राइट। इंडोनेशिया, श्रीलंका, थाईलैंड, राइट है, फिलीपींस, मलेशिया, ओके, लाओस, बेंतियाने, ऐसे देशों के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाना। तो जो लुक ईस्ट की पॉलिसी है वो इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन से तो इंस्पायर था ही था, उसका एक ऑब्जेक्टिव ये भी है कि नॉर्थ ईस्ट के स्टेट का डेवलपमेंट किया जाए। नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट हैं उसमें डेवलपमेंट हो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, सोशल डेवलपमेंट हो, पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो। सो लुक ईस्ट पॉलिसी ऑल्सो कनेक्टेड टू द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आए, इंसर्जेंट ग्रुप के ऊपर कंट्रोल किया जाए, यह भी लुक ईस्ट पॉलिसी का एक कोर ऑब्जेक्टिव है। लुक ईस्ट पॉलिसी में आसियान देशों के साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात के ऊपर स्ट्रेस दिया गया, इकोनॉमिक इंगेजमेंट, कल्चरल इंगेजमेंट, डिफेंस इंगेजमेंट को बढ़ावा दिया गया। म्यांमार से जो कुछ टेररिस्ट ग्रुप ऑपरेट हो रहे हैं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में, उनको कंट्रोल करने के लिए ऑपरेशन भी कुछ साल पहले चलाया गया और उनको डिस्ट्रॉय किया गया। जो ट्रेनिंग कैंप म्यांमार के थ्रू चलाए जा रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट के जो इंसर्जेंट ग्रुप है उनको जो पेट्रोनाइज किया जा रहा है, इन चीजों के लिए भी सरकार काम कर रही है। एंड लुक ईस्ट पॉलिसी में ये सारी चीजें हैं कि नॉर्थ ईस्ट का कैसे विकास हो, कैसे डेवलपमेंट हो। देन नॉर्थ ईस्ट में जो रोड या रेलवेज की कनेक्टिविटी होगा, उससे नॉर्थ ईस्ट के साथ साथ वेस्ट इंडिया के साथ भी कनेक्टिविटी होंगे। ओके, नॉर्थ ईस्ट में यूनिवर्सिटी सेटअप किया जा रहा है, रिसर्च सेंटर सेटअप किया जा रहा है और सिंगापुर, म्यांमार, इवन दूसरे देशों के साथ इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के थ्रू जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी किया जा रहा है, राइट। सो नॉर्थ ईस्ट रिसेंट टाइम में प्रायोरिटी एजेंडा पे आया है। पहले अगर आजादी के बाद हम देखें तो ड्यूरिंग 60s में, 70s में नॉर्थ ईस्टर्न के ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं दिया गया। बस लास्ट 10 ईयर्स में, इवन मोर देन 10 ईयर, व्हाट वी सी, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है, राइट। सो दिस इज द पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रमोट द नॉर्थ ईस्टर्न डेवलपमेंट, नॉर्थ ईस्टर्न इंफ्रास्ट्रक्चर, नॉर्थ ईस्टर्न इकोनॉमिक एक्टिविटी। ओके, राइट।
इवन कुछ नए नए हाईकोर्ट भी बनाए। पहले क्या होता था कि गुवाहाटी हाईकोर्ट था जो 5-7 राज्यों के लिए था, अब त्रिपुरा, मिजोरम, बहुत सारे राज्यों में और भी हाईकोर्ट बनाए गए हैं, जिससे जो पेंडिंग केस है, जो आपका जुडिशियल सिस्टम है, उसको मजबूत किया जाए और नॉर्थ ईस्ट के लोगों को स्पीडी जस्टिस दिया जाए। राइट है? ओके, so these are the major steps that was taken by the government of India for the development of the northeastern state. नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हमारे सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, जिसको मैं पहले भी कह चुका हूं कि वो चिकन नेक है। हमारे पास मेन लैंड की जो कनेक्शन है वो 50 किलोमीटर से ज्यादा का नहीं होगा, क्योंकि बीच में बांग्लादेश है। अगर आप देखेंगे मैप को तो वहां आपको दिखेगा कि बांग्लादेश के साथ ही कनेक्शन है। चूंकि उस स्टेट का एक टोपोग्राफी ऐसा है जिस वजह से इंसर्जेंट की घटनाएं या सेपरेटिज्म को जो है एक तरह से इकोसिस्टम मिलता है। और पार्टीशन ऑफ जब पाकिस्तान हुआ और बांग्लादेश बना, इसकी वजह से भी वहां पे बहुत सारे लोग आए। राइट? तो यू हैव टू राइट वन क्वेश्चन, प्लीज राइट अ क्वेश्चन, व्हाट आर द मेजर प्रॉब्लम of northeastern state and what are the major problems, in fact what are the factors that led to instability in the northeastern state, and discuss the some steps, some remedial measures to the northeastern states. Some remedial measures, some steps to the northeastern state. देखिए, नॉर्थ ईस्ट में आपने पढ़ा होगा न्यूज़ मीडिया वगैरह में 2008 में, 2014 में उल्फा का इतना ज़्यादा टेरर का एटमॉस्फेयर था कि स्कूली बच्चों को भी मार देते थे। राइट है? बिजनेसमैन वहां पहले नहीं जाता था कि बिजनेस सेटअप करना है, वहां किडनैपिंग हो जाना था। राइट है? और उसके बाद रैंसम मनी मांगा जाता था। स्कूल पे अटैक करना या वहां इनोसेंट लोगों को मारना, हिंदी स्पीकिंग पीपुल को मारना, कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट को बढ़ावा देना, एथनिक कॉन्फ्लिक्ट को बढ़ावा देना, ये सारी चीजें फ्रीक्वेंट था। राइट है? सम रिपोर्ट के हिसाब से हम क्या देखते हैं, 2008 में आउटसाइडर का इशू आया था और 2003 में बोडो अकॉर्ड हुआ। राइट? बोडो अकॉर्ड हुआ जिसमें बोडो का जो लैंग्वेज है, जो कल्चर है, सोशियो कल्चर है, उसको प्रोटेक्शन करने की बात गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट किया। राइट है? सो बोडो और नॉन बोडो का क्लैश, बोडो का मुस्लिम के साथ क्लैश, राइट है, ये एक इंपॉर्टेंट इशूज था। कार्बी आंगलोंग जो है वन ऑफ द बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट है असम का। राइट है? और वहां पर भी कुछ समस्याएं हैं क्योंकि कार्बी पीपुल ने लिबरेशन टाइगर बना लिया था। राइट है? और ये लिबरेशन टाइगर इज ऑल्सो इन्वॉल्विंग इन द सम काइंड ऑफ वायलेंट एक्टिविटी, और उनका जो लोकेशन था नागा हिल के पास था। राइट है? NDFB नेशनल डेमोक्रेटिकल फ्रंट ऑफ बोडोलैंड वॉज फॉर्म इन 1998। ये भी एक तरह से कह सकते हो कि बोडो पीपुल को रिप्रेजेंट करते हैं ना, दे आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन द सम काइंड ऑफ insurgent activities, and 2014 this institution has killed the 35 people. right? तो लोगों को मारना या इस तरह के जो है एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना वहाँ के नॉर्थ ईस्टर्न जो एजेंसी, नॉर्थ ईस्टर्न जो आपके ग्रुप्स हैं उसके लिए बहुत कॉमन है। राइट? जैसे उल्फा का एक टाइम में बहुत ज़्यादा एक तरह से टेरर होता था और उल्फा का एक पैनिक था लोगों में। वहाँ पर 7 बजे 8 बजे के बाद लोग घर से निकलते नहीं थे, लोगों का किडनैप हो जाना, ऑफिशियल के साथ जो है बदसलूकी होना या उनको मार देना, इस तरह की घटनाएं हो रही थी। कुछ दिन पहले ही इंडियन ऑयल के कुछ इंजीनियर को वहाँ किडनैप कर लिया गया। राइट? इस तरह से जो घटनाएं हैं नॉर्थ ईस्ट में काफ़ी ज़्यादा हो रहे थे, लेकिन विद द डिफरेंट स्टेप्स लास्ट 5 to 7 ईयर हम लोग क्या देखते हैं कि नॉर्थ ईस्ट मोर और लेस पीस और विकास की तरफ बढ़ रहा है, और वहाँ किसी तरह की प्रॉब्लम या छिटपुट वारदात को छोड़कर कोई बड़ी घटना वहाँ नहीं सुनाई दे रही है। एक्सेप्ट अभी कुछ दिन पहले हमने मणिपुर में देखा कि फोर्सफुली लोग को वहाँ से अपने एरिया से छोड़ के जाना पड़ा।
इसके पहले भी कुछ लड़ाइयाँ हुई नॉर्थ ईस्ट में, जहाँ लोगों को फोर्सफुली अपने जो प्रॉपर्टी है, जो जगह है, वहाँ से छोड़ के जाना पड़ा। लेकिन इसके बाद भी गवर्नमेंट्स अभी भी स्टिल डूइंग द नंबर ऑफ स्टेप्स, नंबर ऑफ प्रोग्राम फॉर द डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। थैंक यू। नॉर्थ ईस्ट की समस्या, राइट।